Good morning, students. So, beta, today we are going to start with the next program from the topic object passing. Okay, and it is question number 7. So, first give a look to the problem that what it says. Define a class strings with member data as str as string. Then three methods are there: void read data, void reverse strings, and void palindrome string. And children, when you will go through the whole program, then what we come to know that in this program we have to check whether a string is palindrome or not. Okay, so we start from the answer itself, and in the answer, children, in at few places you will find that blank spaces are missing, and you have to take care of that. For example, in the first line, import java.util, so you know that after the import, one blank space is required there. So I know that all of you know it very well. And after that, the class definition start. Okay, so in the class strings, children, the first data member is named as str of string, and then the next method is void read data, which takes the input of a sentence, and next method is void reverse, which accepts an object of the strings class. Okay, and after that the final method is void palindrome, which checks if the string and its reverse both are equal to each other or not. Okay, so very simple program. So I simply take you to the main method. Okay, in the main method, children, look at the first line: strings a equal to new strings. Okay, children, so what will it do? It will make an object of the string class named as a. Okay, suppose that I create here. Okay, it is named an object a, and it has only one data member, that is str. Okay, after that in the next line it says string b equal to new strings. Okay, so I make one more object. It is b. Okay, the name of the object is b, and it also has one data member, that is str. Okay, children, so I created two objects named as a and b, and both of them are having their individual data members str and str, and you know that all these three methods will be also having the three methods. Okay, read data, reverse, and palindrome. In the same way, the b will also have read data, reverse, and palindrome. Okay, children, so it is the thing. After that, look at the next line. In the next line, children, what is told? B dot read data. May, children, you will call the first method void read data from the body of B. Okay, so in see that what the method says: system.out.println enter a sentence. May, children, it is asking you to input a sentence, and you will enter it into the data member in str. Okay, so you know that when you are calling the method from the body of b, then the data member str will be also from the object b. So suppose that if I enter java is easy, ठीक है बेटा, तो मैंने ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे सेगमेंट इनपुट कर दिया स्ट्रिंग का. ठीक है, तो ये आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, बी डॉट रीड डेटा. इसके बाद फिर अगली चीज़ हमको क्या करनी है कि वी हैव टू कॉल द मेथड void रिवर्स स्ट्रिंग्स. क्या करता है बेटा, देखिए यहाँ बताया गया है दैट इट रिवर्सेस द स्ट्रिंग ऑफ द आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट एंड स्टोर्स इट इनटू द स्ट्रिंग ऑफ करेंट ऑब्जेक्ट. यानी बेटा यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है. इसमें क्या करना है कि जो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है वो अपने स्ट्रिंग को रिवर्स करके
करंट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि बी का जो str वाला वेरिएबल है इसको तो वैल्यू मिल चुकी है और इसका हमें रिवर्स करना होगा, और कहाँ रिवर्स करना होगा, ए में। ठीक है, तो बी अपनी वैल्यू को रिवर्स करके ए में स्टोर करेगा, पर ऊपर बड़ा क्लियरली बोला है कि जो रिवर्स है इट शुड बी स्टोर्ड इनटू द स्ट्रिंग ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। यानी बेटा इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो बी को अपना स्ट्रिंग रिवर्स करना है, यानी बी को हमें पास करना पड़ेगा और ए के str में स्टोर करना है और ए को करंट बनाना पड़ेगा। तो आइए जरा मेन में देखिए कैसे हमने इस सिचुएशन को हैंडल किया। हाँ, ये लाइन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है ध्यान से। हमने कहा ए डॉट रिवर्स बी, ठीक है ना, ए डॉट रिवर्स बी। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये जो ए है ये क्या बन जाएगा, मेरा करंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ए बन गया मेरा करंट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर बी वाले ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, जो बी है ये पास होके जाएगा यहाँ पे। ठीक, और अब आ जाइए इसके अंदर, देखिए हमने क्या कहा, इंटीजर x कॉमा एल इक्वल टू बी डॉट str डॉट लेंथ। तो जरा इसकी जो लेंथ है वो चेक कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा इसकी जो लेंथ है बी के str की वो कितनी है, 12, यानी कि इसमें जो कैरेक्टर्स स्टोर हैं दे विल बी स्टोर्ड फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 to 11। तो यानी कि यहाँ पे जो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और फिर अगली लाइन ध्यान से पढ़िए, मैंने क्या लिखा, str इक्वल टू नल। str की वैल्यू नल कर दीजिए। अब सोचिए ये कहाँ का str है। इस str के पहले बेटा किसी ऑब्जेक्ट का नाम तो लिखा नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था पहले कि वेन एवर वी फाइंड द नेम ऑफ नो ऑब्जेक्ट बिफोर द नेम ऑफ एनी डेटा मेंबर, इट मीन्स दैट डेटा मेंबर बिलोंग्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट। तो इसके पहले कोई नाम नहीं है, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर होगा। और अभी जो फंक्शन कॉल हुआ है वो कहाँ से कॉल हुआ है, ए की बॉडी से। ए आपका करंट ऑब्जेक्ट है, यानी ए का जो str है वो कितना हो जाएगा, नल हो जाएगा। इसके बाद अगली लाइन देखिए क्या लिखी मैंने कहा फॉर x इक्वल टू एल माइनस वन। तो l की वैल्यू 12 है, यानी लूप चलेगा मेरा 11 से लेके 0 तक और x माइनस माइनस। ठीक है, तो पहली बार x की वैल्यू 11 होगी और देखिए क्या है नीचे, str इक्वल टू str प्लस, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट का str, ए के str में ऐड कर दीजिए क्या, b डॉट str डॉट कैरेट x। और आपको पता है पहली बार x की वैल्यू 11 है, तो बेटा मैंने ऑब्जेक्ट b के str में गया और वहाँ का 11th पोजीशन वाला निकाला कैरेक्टर। तो कौन है 11th पोजीशन पे, ईजी का y है, और ये y निकल के कहाँ ऐड हो जाएगा, str में, यानी a के str में ये ऐड हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, y। तो ठीक है, तो देखिए b का लास्ट करेक्टर निकल के a के str के बिगनिंग में आ गया। फिर आपका ये लूप ऊपर जाएगा, x माइनस माइनस x की वैल्यू 10 हो जाएगी, str इक्वल टू str प्लस b डॉट str डॉट कैरेट x, यानी कैरेट 10। अब बेटा 10 वाला निकलेगा s निकल के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आप ऊपर जाओगे x माइनस माइनस, अब 9 हो जाएगा, तो b डॉट str डॉट कैरेट 9 विल बी एडेड टू द str ऑफ a। तो 9 पे कौन है जरा चेक करिए, a है, तो a स्टोर हो जाएगा और उसके बाद फिर अगली बार 8। और अब आप समझ गए होंगे ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है ठीक है, आपने किया हुआ है इसको 10 से। फिर ब्लैंक स्पेस, देन s, देन i, देन ब्लैंक, देन a, फिर देन v, फिर a, और सबसे लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा, आपका j ऐड हो जाएगा। सबसे लास्ट में बेटा x की वैल्यू 0 होगी, तो b डॉट str डॉट कैरेट 0, तो जावा का j यहाँ पे फेच होगा और ये आपका a के str में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ऊपर जाओगे, x माइनस माइनस, द वैल्यू ऑफ x विल बिकम -1 नाउ एंड द लूप विल टर्मिनेट, ओके, एंड द कंट्रोल विल कम आउट फ्रॉम द करंट फंक्शन। और ये निकल के बेटा कहाँ पहुँच जाएगा, अब सीधे फिर से मेन में आ जाएगा। तो बेटा इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद अब देखिए आखिरी लाइन क्या है यहाँ पे, इसकी जो लास्ट लाइन है वो क्या है, a डॉट पैलिंड्रोम b। अब हमें बेटा खाली ये चेक करना है कि ये दोनों पैलिंड्रोम है कि नहीं है, यानी कि जो आपने जावा इज इजी, ये जो इसको यहाँ पे रिवर्स करके a में डाला है, क्या ये दोनों सेम है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉल किया फंक्शन ए डॉट पैलिंड्रोम बी। तो फिर से वही हुआ, ए मेरा इस समय क्या है बेटा, करंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बी को हमने पास कर दिया। तो यहाँ देखिए बी अपने साथ एक क्या लेके आया है, एस टी आर लेके आया है, ए के पास अपना एस टी आर है ही है। फिर मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर कर लिया। कैसे, आई राइट इफ एस टी आर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस बी डॉट एस टी आर, यानी क्या करंट ऑब्जेक्ट का एस टी आर बी के एस टी आर के इक्वल है। तो आपको पता है कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यानी फॉल्स हो जाएगा। कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ, और क्या लिख के आ जाएगा, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है ना, तो मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा बहुत ही क्लियरली, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है बेटा, और आपको पता है कि अगर आपने कोई ऐसा सेंटेंस अगर इनपुट किया होता जहाँ पे इसका रिवर्स इसी के इक्वल आता, ठीक है, तो यही अभी कंडीशन ट्रू हो जाती और यहाँ पे क्या लिख के आ जाता है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है बेटा, तो आई होप कि सबको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी प्रोग्राम था। ठीक है, और आप में से कई लोगों ने इसको बहुत अच्छे से ट्राई भी किया है। ठीक है, तो चलिए अब ऐसे ही अब जो है कुछ बोर्ड्स की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, थैंक यू।